Hello guys, welcome back. Today we are with another video. In this video we are going to discuss about GATE previous year questions from classification of soil. In previous video we discussed all the questions asked from properties of soil in GATE, and we will today discuss all questions from classification of soil, and tomorrow we will go for effective stress and permeability questions, and in a similar way we will cover all questions of soil mechanics including geotechnical, including foundation engineering. So guys, let us start the video without any further delay. If you are new in my channel, do subscribe and press the bell icon as well. So the first question will be displayed to you on the screen. According to question, the clay mineral primarily govern the settling behavior of black cotton soil is. So the clay mineral Montmorillonite is responsible for swelling in black cotton soil. So the correct option will be option D, right? Montmorillonite. So I will write here for you. Montmorillonite is a clay mineral having property of swelling and shrinkage. It swells when water is available around it, and it shrinks when water becomes less around it, right? So जब पानी available होता है इसके around it, it has ability to retain water, so it becomes swelling. It become like it expands in size, expands in volume. The soil expands in volume when moisture reduces it, so it starts shrinking. So shrinking and swelling is the property of Montmorillonite. So in presence of Montmorillonite, the black cotton shows cotton soil show swelling and shrinkage properties. Second, it has good water holding capacity. Montmorillonite has good holding capacity. Water holding capacity. ठीक है. So it has a good water holding capacity. That means its activity is very good. That means its activity is good. So मैंने आपको activity पढ़ाया हुआ in previous videos. We discussed about activity, sensitivity, thixotropy, all these small topics. So you can refer previous videos for activity. So activity of Montmorillonite is greater than 4. It means it has high water holding capacity. So for any soil, if activity is equivalent to 1, we can say this is active soil. If it is greater than 1, so it means it is very highly active. So it has very high activity. So hence we cannot use this soil for our construction, right? So black cotton soil को construction में use नहीं किया जाता है, इसकी water holding capacity जिससे structure collapse हो सकता है. Now coming to second question, ये हमारा first question था. Coming to second question, the question will be displayed to you on the screen. According to question, a fine grain soil is found to be plastic in the water content range of 26 to 48% is per Indian standard soil classification system. The soil is classified as low clay, high clay, low sill to low clay, and intermediate clay. So question second is, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो हमें क्या बोला गया है? प्लास्टिक रेंज दिया हुआ है. प्लास्टिक रेंज दिया हुआ है कितना है? 26 से लेके 48 तक. आपको प्लास्टिक चार्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये होता है प्लास्टिक चार्ट. ठीक है, इस चार्ट को याद रखना. ठीक है, तो ये होती है लिक्विड लिमिट, ये होती है प्लास्टिक लिमिट, और ये होती है श्रिंकेज लिमिट. अब ये प्लास्टिक रेंज बोल रहा है, तो प्लास्टिक रेंज कहीं ना कहीं इसमें आएगा. तो 26 क्या हुआ? यहाँ पे आएगा. तो 26 क्या है इसकी? लिक्विड प्लास्टिक लिमिट. एंड लिक्विड लिमिट कितनी हो गई? 48. ठीक है, 48%. तो यहाँ से हमने एक चीज तो निकाला, लिक्विड लिमिट है 48% एंड प्लास्टिक लिमिट क्या है? WP प्लास्टिक लिमिट 26%. सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट कितनी है? 48. तो ये किस रेंज में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है 35 to 50. मैंने प्लास्टिक चार्ट पढ़ाया था, प्लास्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग फाइन ग्रेन सॉइल को हमने क्लासिफाई किया था. ठीक है,
और अगर सॉइल की प्लास्टिक रेंज लिक्विड लिमिट इस रेंज में आ रही है तो वो सॉइल क्या है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। तो यहाँ पे 48 है तो ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। ठीक है, सॉइल इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल को आई से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना है सॉइल क्या है। देखो मैंने ये चार्ट पढ़ाया था आपको इस तरह, इसको हम बोलते हैं ए लाइन। ठीक है, ए लाइन के ऊपर अगर आएगा ये हमारा क्ले होगा, इसके नीचे होगा इसके नीचे जो होगा वो हमारी सॉइल कौन होगी, सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी। अब बात आ रही थी यहाँ पे लिक्विड लिमिट की, यहाँ से हमने लिक्विड लिमिट शो करा था WL, और यहाँ से हमने IP प्लास्टिक इंडेक्स शो किया था। अब यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट हम शो कर रहे थे, यहाँ पे लिक्विड लिमिट 35% था और यहाँ पे 50% था और यहाँ पे 20% था। 20% लिक्विड लिमिट पे हमारी IP प्लास्टिक इंडेक्स 0 होती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IP इक्वेशन 0.73 लिक्विड लिमिट -20, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो IP 0 हो गया। अब IP 30 और 50 के बीच में जब लाई करेगा तो ये इंटरमीडिएट सॉइल कहलाएगा। ठीक है, अब देखना है ए लाइन के ऊपर है या सॉइल ए लाइन के नीचे, वो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए देखना है हमें सबसे पहले IP निकालना है। ठीक है, तो सॉइल की IP और इस चार्ट की IP, एक IP निकालना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये IP निकालनी, एक IP निकालनी है कौन सी, सॉइल की IP। वो IP किसके बराबर होगी, लिक्विड लिमिट जो हमें दिया है और प्लास्टिक लिमिट दिया है, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करेंगे। पहले हम निकालेंगे IP चार्ट। देखो आप यहाँ देखना अच्छे से, फर्स्ट वी विल फाइंड IP चार्ट। IP चार्ट हो गया IPC। ठीक है, तो ये क्या है 0.73 लिक्विड लिमिट -20, तो ये क्या आएगा 0.73 लिक्विड लिमिट। अभी हमने निकाला कितना है, 48 हमें प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में, तो 48 -20, तो ये कितना आएगा हमें, ये 20 के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी IP चार्ट 20 के आसपास आ चुकी है। अब IP सॉइल निकालेंगे, IP सॉइल वो होगी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो वो हम करेंगे 48 में से कितना कम करेंगे 26, तो वो हमें कितना आ जाएगी 48 - 26, तो वो एक बार कर लेंगे जल्दी से, तो ये 22 के पास हमें आ चुका है। ठीक है, 22, तो यहाँ पे क्या हो गया, IP जो सॉइल है वो ग्रेटर देन IP चार्ट वाले से ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखना इस कंडीशन को, जब ये वाली कंडीशन आएगी IP सॉइल जो है वो ग्रेटर हो गई IP चार्ट से, तो जो हमारी सॉइल होगी ना वो A लाइन से ऊपर लाई करेगी। ये A लाइन है, तो A लाइन से ऊपर जो भी है वो क्ले है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट किया हमने फाइंड आउट, क्योंकि लिक्विड लिमिट इस रेंज में लाई कर रहा है तो ये इंटरमीडिएट हो गया, तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट क्ले, CI हुआ इंटरमीडिएट क्ले। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, D ऑप्शन होगा इंटरमीडिएट क्ले। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एबो ए लाइन, तो सॉइल कौन सी होगी हमारी, क्ले। ठीक है, now coming to next question, the question will be displayed to you on the screen. According to question, as per Indian standard soil classification system, इन एक्सप्रेशन फॉर ए लाइन इज, अभी पढ़ा बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर जो होगा वो IP के बारे में पूछ रहा है। IP क्या हुआ, एक्सप्रेशन फॉर ए लाइन। ए लाइन कौन सी हुई, अभी बताया, ये होगी प्लास्टिक चार्ट हुआ, ये ए लाइन होगी जो 20 से पास करके जाती है, लिक्विड लिमिट 20 से पास करके जाती है, इसको ए लाइन बोलते हैं। तो ए लाइन की एक्सप्रेशन होती है IP = 0.73 WL लिक्विड लिमिट -20। ठीक है, एक होता है, ये हुआ ए लाइन। ठीक है, इसके साथ साथ बता के चलूंगा, एक होता है P लाइन। तो P लाइन क्या होता है, IP = 0.8 लिक्विड लिमिट माइनस क्या होता है 10 लिक्विड लिमिट -10, तो इसको भी याद रखना है, लिक्विड लिमिट -8 होता है। ठीक है, लिक्विड लिमिट -8, तो ये याद रखना इक्वेशन ऑफ U लाइन। देख लेना यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत हुआ है, इक्वेशन ऑफ U लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। So coming to next question, the question will be displayed to you on the screen. As per Indian standard soil classification system, a sample of silty clay with liquid limit of 40 in plastic index 28, तो क्वेश्चन is classified as, ठीक है, तो एक सॉइल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉइल में बता रहा है फॉर इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक सिल्टी क्ले है, सिल्टी क्ले अवेलेबल है हमारे पास। सिल्टी क्ले में क्या पाया गया, लिक्विड लिमिट जो है इसकी
40% है एंड IP प्लास्टिक इंडेक्स जो इस सॉइल की 28% है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले चीज तुम्हारे हमें पता चल गई जो लिक्विड लिमिट है वो किस रेंज में है, 35 टू 48 के रेंज में है, जो क्या कहलाएगा, अगर इसके 35 टू 50 के रेंज में, सॉरी, तो यहाँ से 35 और 50 के रेंज में जो सॉइल होगी जिसका लिक्विड लिमिट 35 से 50 के रेंज में होगा, वो सॉइल होगी इंटरमीडिएट सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। यहाँ से एक चीज पता है, सॉइल जो भी होगी वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगी। अब दूसरी बात, IP सॉइल तो हमें पता है 28। अब IP चार्ट निकाल के इसके साथ कंपेयर करना है। IP चार्ट क्या होता है, IP इक्वल टू 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, सारा प्रोवाइड किया गया है 0.73, लिक्विड लिमिट कितना है हमारे पास 40, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 40 माइनस 20, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आएगा 14.6। तो यहाँ से क्या पता चला, IP जो सॉइल है वो ग्रेटर देन IP चार्ट है। तो ये सॉइल कौन सी सॉइल हुई, क्लेई सॉइल, जो ए लाइन से अबो लाई करेगी। ठीक है, ये सिचुएशन तब आएगी जब हमारी सॉइल क्लेई होगी, ए लाइन से ऊपर ऊपर आ जाएगी। अब ए लाइन से ऊपर आ जाएगी तो कौन सी है, क्ले। तो कौन सी क्ले है, CI, क्योंकि इंटरमीडिएट है तो आंसर आएगा CI। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, CI, इंटरमीडिएट क्ले। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड टू यू ऑन द स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है a fine grained soil has liquid limit of 60 and plastic limit of 20. As per plastic chart, according to IS classification, the soil is represented by the letter symbols Cl, Ci, Ch, Cl to Ml. ठीक है, तो अब यहाँ पे बारी आ रही है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया है, लिक्विड लिमिट WL हमें प्रोवाइड किया हुआ है 60 एंड प्लास्टिक लिमिट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है 20 दिया गया हुआ। एज पर प्लास्टिक चार्ट अभी समझाया, ए लाइन वाला, ये वाला चार्ट प्लास्टिक चार्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉइल को क्लासिफाई करके देना है। ठीक है, देखो WP और इन दोनों की हमें जरूरत है किस लिए, IP निकालने के लिए, IP सॉइल निकालने के लिए। तो IP सॉइल क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, वो क्या आएगा 40 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक चीज देखना है कि हमारी जो लिक्विड लिमिट है ना WL, वो किस रेंज में, वो अगर 35 टू 50 के रेंज में आ रही है तो हमारी क्या इंटरमीडिएट है, अगर उससे बाहर आ रही है तो वो हाईली कंप्रेसिबल है। देखो यहाँ पे ये 35 से 50 तक इंटरमीडिएट है, अगर इससे ज्यादा लिक्विड लिमिट आएगी तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड लिमिट हमारी क्या है 60 है, 60 है, तो जो भी सॉइल आएगी वो हाईली कंप्रेसिबल होगी। अब देखेंगे कौन सी सॉइल होगी, क्ले होगी, सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, IP चार्ट फाइंड आउट करना, वो होता है 0.73, लिक्विड लिमिट क्या है 60 माइनस 20, वो हमें सॉल्व करने के बाद 29.2 के आसपास आ जाएगा। तो कंपेयर करो भाई, IP सॉइल फिर भी यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में भी IP सॉइल जो है ग्रेटर देन IP चार्ट है, IPC चार्ट। तो ये सॉइल कौन सी होगी, क्ले। तो क्या लिखेंगे, CH, हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, तो इसका ये सही ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सॉइल मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल चैप्टर से आए हुए थे। आई होप गाइस आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।